Assalamualaikum everyone. I am Ariba Tariq Lutfi. Welcome to Sante's weekly broadcast, Nazaria, the power of experience. On Nazaria, we talk about experiences versus knowledge with Pakistan's leading ophthalmologists and their practice in treating glaucoma, and share their knowledge with our viewers, especially the junior ophthalmologists and the young and upcoming ophthalmologists. So today I would like to introduce one of the very known ophthalmologists in Pakistan. Her name is Dr. Saman Ali. She is the consultant ophthalmologist and also the Glaucoma Clinic Incharge at Mayo Hospital, Lahore. So as I earlier said, we have to give this knowledge to the junior ophthalmologists and young ophthalmologists. So it wouldn't be fair to say that she is not a young ophthalmologist. Alhamdulillah, she is a very young ophthalmologist, but she has an immense experience in such a young age, I would say. So Assalamu alaikum, Dr. Saman. How are you doing? And do you have any few words to say about the experience sharing and Nazaria? Thank you, Ariba, and thank you, Sante team, for inviting me onto this show. And thank you, Ariba, especially for giving me such a good compliment before starting. Okay. Before we start on and we progress, I would like to congratulate our teenager Kodorzor on its birthday, because it's if not the one of the favorites of all the ophthalmologists, I guess. Secondly, I would like to appreciate you people, the Sante team, for their starting this Nazaria, the power of experience, because it is a very good platform for us to share our Nazarias with each other. Exactly. And give the public experience. So very good initiative. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saman, for joining us and gracing us with your presence, and I would really like to appreciate that you mentioned that it has been, it basically is an anniversary for our brand as well. So yes, it has been 15 years, and thank you for putting your trust in our brand. And I hope that we always, we are always up to the mark accordingly. So let's start with the questions, because हम glaucoma की बात करते हैं और हम इस phase में glaucoma की ही बात कर रहे हैं नजरिया में भी. तो सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि ग्लॉकोमा की जो फैक्टर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडरेशन में नहीं लिए जाते ड्यूरिंग द कॉमन प्रैक्टिस इन ग्लॉकोमा? Okay, I would not say कि common practice में नहीं किए जाते, but what I feel, I believe कि जो important है चीजें वो I'll share with you people. Yeah, of course. Glaucoma basically it's an irreversible disease, silent killer of the vision, and here I would like to mention the prevalence. The prevalence of it, the burden of the disease is growing big every day. Year by year, it's growing big. And moreover, the 50% of the people are not even diagnosed till yet. And the burden of the disease is going to increase by 2 times or 3 times by year 2040. So here I would like to mention first that the awareness is one of the major challenge which the doctors and the patients are facing. So we have to make the patients aware of this fact कि जी उन्होंने भी जब अपनी क्लासेस के लिए आए या जब भी हो तो उनको पता हो कि सफेद मोतिया से डरना नहीं है और काले मोतिये को सीरियसली लेना है, क्योंकि उनको बस मोतिये में वो कंफ्यूज रहते हैं और there is lack of awareness about glaucoma. तो ग्लोकोमा की अवेयरनेस हम किस तरह कर सकते हैं कि डॉक्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब whenever a patient comes to you for refraction, for any irritation, foreign body, anything, allergies, you get to see their fundus. हमें इग्नोर नहीं करनी, उनकी फंडस जरूर देखनी, उनकी आईओ की स्क्रीनिंग जरूर करनी. And for the patients to know, awareness तो patients में हमने करनी होती है. That is why we celebrate the glaucoma week, not only just day, but glaucoma week. So उनके लिए ये important है. Whenever if young patients also they come for classes, they need to get, उनको पता हो कि जी अगर उनकी family history है कोई तो वो डॉक्टर्स को शेयर करें और वो मतलब उनको पता हो कि जी हमने दिखानी है, सिर्फ नंबर लेके एनक का नंबर लेके वापस ना चले जाए. एंड स्पेशली जब 40 के वक्त प्रेस बायोपिक क्लासेस ई-मेट्रोप पेशेंट्स को 40 के पे प्रेस बायोपिक क्लासेस की जरूरत होती है, दे शुड आल्सो बी नोइंग कि जी हमें अपनी फंडस भी चेक करानी, सिर्फ नंबर ही नहीं लेना करीब का और चले जाना है. सो दे शुड बी अवेयर एंड आवर रिस्पांसिबिलिटी इज ऑब्वियसली कि वी शुड सी द फंडस ऑफ एवरी पेशेंट हु कम्स टू अस, प्रोवाइडेड कि मीडिया क्लियर हो और एवरीथिंग वी कैन सी दैट. सो अवेयरनेस एंड देन since it's a progressive disease, so counseling is a very, very important thing. Agreed. Counseling patient की बहुत करनी है. They need our time. ये बाकी glaucoma patients are not like other patients कि आपने बस दवाई दी और वो ठीक हो गए. It's like blood pressure and diabetic patients. We need to all over their life, and so they are also in pain.
एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू कन्फाइड इन देम कि जी आपकी बीमारी मतलब मजीद खराब, मतलब उसलिए उनको क्लियरली बताना है कि जी आपने अपना ध्यान Yes. और उनके साथ उनसे शेयर करनी, मतलब वी शुड शेयर देयर एम्पैथीज आल्सो विद देम. काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि उनको उनकी डिजीज के बारे में बताना, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकेशन एंड देन द फॉलो अप्स, दे आर द वेरी रेगुलर. अच्छा, एंड नाउ योर क्वेश्चन, द फैक्टर्स, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. नाउ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर नोट किया करें. द रिस्क फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री, मायोपिक पेशेंट्स, डायबिटिक हिस्ट्री में आप डिटेल्ड हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जल्दी, I'm working in Mayo Hospital where I get the referrals from peripheries as well as our screening rooms. तो हर पेशेंट को नीचे मेरे पास भेजते हैं फॉर ग्लोकोमा असेसमेंट. तो मैं ये नहीं है कि हर पेशेंट नीड्स इन्वेस्टिगेशंस और हर पेशेंट को, मतलब आई सी द फंडर्स, आई व्हेनेवर आई फील लाइक मैं उसको करती भी हूँ. बट आप, उनका काम यही है कि हमारी जो स्क्रीनिंग रूम का, दे सी द फंडर्स एंड देन दे सेंड अस टू. इसी तरह दूसरे लोग भी जो डायग्नोज केसेस मेरे पास आते हैं, दे आर इजी, मतलब उनको अगर मैंने करना है तो आईओपी नहीं कंट्रोल उनका, वो मैंने मैनेज करना है. लेटर ऑन आई विल टेल यू हाउ एंड, बट आई एम सेइंग कि जी इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ऊपर भी मेरे पास आते हैं, तो आई टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री. इफ द रिस्क फैक्टर्स आर मोर लाइक फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया है, डायबिटिक है, यूवियाइटिस, सेकेंडरी डिजीजेस हैं, तो उनको हम ज्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं. एंड इफ यंग पेशेंट है तो हम ये नहीं कि फौरन स्टार्ट करते मेडिकेशन, हिस्ट्री पे रख के, सस्पिशियस रख के हम उनका लॉन्ग टर्म, उनको वही अगेन काउंसलिंग कम्स, उनको ये बताना है कि जी अगर हम स्टार्ट आपको अभी से लेबल कर देंगे ग्लोकोमा, तो ये आपके लिए टाइप चीज हो जाएगी अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है. तो वी नीड टू बी रियली श्योर फॉर द यंग पेशेंट्स स्पेशली. डायग्नोज केस सब कुछ उसके पता चल रहा है कि जी ऑब्वियस ग्लोकोमा है, वो तो कोई बात ही नहीं होती ना. जब चैलेंजेस हैव टू स्टार्ट मेडिकेशन, सो पेशेंट, हाँ जी बिल्कुल, जब जब चैलेंज तो वही है, यंग पेशेंट है और उसको स्टार्ट करना है कि नहीं है, दैट इज द मेन. अच्छा, अब हिस्ट्री में तो हमने सारे पॉइंट्स देख लिए. अब जब व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, एवरीबडी नोज व्हाट वी हैव टू, विजुअल एक्टिविटी करना है. बट सिंस वी ऑल नो कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आईओपी इज द ओनली ट्रीटेबल रिस्क फैक्टर, तो हमने आईओपी कंट्रोल करना है, तो दैट शुड बी रियली मतलब एग्जैक्ट. एप्लीनेशन कीजिए, सिर्फ स्क्रीनिंग एयर पाथ पे मत उस पे यकीन रखिए. Do applanation tonometry for the ophthalmologist, obviously I'm saying this now, and do the pachymetry, उसको adjusted IOP के साथ कंट्रोल करें ताकि हमारे IOP में कोई फॉल्ट ना रह जाए. Okay. Because that is the only factor we all know कि we have to treat. Okay. Then comes gonioscopy. We have to see, the doctors, they have to establish what type of glaucoma it is. So gonioscopy and anterior segment examination is very important. Investigations जो कराएंगे बाद में, वो उसकी डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करेंगे. दैट इज फॉर द किस स्टेज पे है एंड द प्रोग्रेशन. डायग्नोसिस हमारा जो है कि इफ इट इज एंगल क्लोजर है, कि ओपन एंगल है, सेकेंडरी ग्लोकोमा है, दैट इज सूडो एक्सफोलिएशन है, न्यू वेस्कुलर, बट व्हाटएवर सेकेंडरी ग्लोकोमास है या प्राइमरी ओपन है कि क्लोज्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन आर anterior segment examination and gonioscopy. Okay. So gonioscopy, which is a forgotten art, उसको बहुत ज्यादा अपनी एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. एंड देन आपने इसके बाद फंडस जरूर देखनी. वो तो नॉर्मल फंडस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए फंडस देखेंगे तो वो एग्जामिन करेंगे कि देयर इज सम डिफरेंस इन दैट. सो नॉर्मल फंडस देखें, उसके बाद उसको डायग्नोज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फिर इन्वेस्टिगेशन कम्स. वो इन्वेस्टिगेशंस, वो भी दो मेजर इन्वेस्टिगेशंस है हमारे पास, विजुअल फील्ड एंड ओसीटी. बट ओसीटी इज ऑप्टिक नर्व हेड का जो है, दैट इज नॉट कि आप पहली विजुअल फील्ड पे या पहली ओसीटी पे आप डायग्नोज करते हैं. ओसीटी ठीक है, इट्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस बट नॉट फॉर ओवर डायग्नोसिस. ठीक है, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट्स हु रिक्वायर इट, बट ओवर डायग्नोसिस भी होना चाहिए, बिकॉज ओसीटी से कभी कभी हम ओवर डायग्नोज कर देते हैं. ठीक है, एंड वी डू नॉट वेट आल्सो फॉर द विजुअल फील्ड्स टू कम, के विजुअल डिफेक्ट्स आए तो हम उसको करें, लेकिन ये कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द. तो इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टेजिंग एंड द प्रोग्रेशन. हमने पेशेंट्स की काउंसलिंग के साथ उनको ये बताना है कि हम डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी कितनी देर बाद, ड्यूरेशन के बाद हम ये रिपीट करेंगे टेस्ट. उसके बाद कम्स द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट तो हमने अगर डिपेंडिंग अपॉन आईओपी है उसके हिसाब से करेंगे. तो मेरे मतलब यही था, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आई वुड लाइक टू इम्प्रोवाइज के ये एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली करें, गोनियोस्कोपी को करें, आईओपी एडजस्टेड आईओपी को कीजिए, एंड देन फंडस एग्जामिनेशन. और इन्वेस्टिगेशंस की बेस्ड पे सिर्फ हम डायग्नोसिस नहीं बनाते, प्रोग्रेशन.
ओके, दैट वाज अ प्रीटी डिटेल्ड आंसर एंड आई थिंक आपने सभी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। इसमें यू स्टार्टेड विद पेशेंट्स के, आपने बेसिकली पहले पेशेंट फोकस्ड आंसर किया एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ताकि वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के लिए भी आए। और इसमें मेजरली आपने हिस्ट्री चेकिंग की बात करी, एग्जामिनेशन की बात करी और इंश्योर करने की बात करी कि डायग्नोसिस जो है वो सही इंश्योर करे और जल्दबाजी में बेसिकली ना इंश्योर करे कि एक ही टेस्ट पे नहीं करे, आप लोग जो है वो सारे टेस्ट जो है वो सही से करें और सारी एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपरली जो है वो थरली करें। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर एंड आई एम श्योर कि आपने इसमें सारी चीजें ही कवर कर ली हैं, फैक्टर्स जो है वो हमारे। सो आई वी हैव डेफिनेटली गॉटन टुवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। सो सिंस आपने इतनी अच्छी तरह से हमें डिटेल में बताया, तो मुझे आप एक और चीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि कोई ग्लॉकोमा केस ऐसा बताएं जो कि जनरली जो है वो एक तो कॉमन केसेस होते हैं और एक होता है कि जिसमें यू थिंक कि हाँ इससे जो है वो इजाफा हो सकता है मेरे जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट में या मेरे कलीग्स में या पेयर्स के साथ, तो वो एक ग्लॉकोमा केस ऐसा शेयर जरूर करें हमारे साथ। मैं एक तो नहीं, मैं एक दो कर सकती हूँ। Of course. आई वुड लाइक टू शेयर, हाँ ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू शेयर। एक थे मेरे पास एक पेशेंट आए और फॉर्चुनेटली वो मेरे कुलीग ही थी, मतलब कुलीग में नॉट द डॉक्टर बट एक हमारे ऑफिस स्टाफ में से। तो Okay. उन्होंने वैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है जी, मेरी आई चेक की। जब आई चेक की तो मैं रूटीन में, जैसे मैंने अभी पहले बात की, आई एम इन हैबिट ऑफ लुकिंग एट द फंडस इफ एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने फंडस देखी तो मैंने उनसे फिर से हिस्ट्री पे प्रोब करना शुरू किया क्योंकि मुझे सस्पिशियस उनकी डिस्क लगी। मैंने उनसे जब पूछा फैमिली हिस्ट्री तो ही न्यू कि उनकी फैमिली में ग्लोकोमा चल रहा है, बट बीइंग देयर आल्सो उन्होंने उसको मतलब ही डिड नॉट, ही ओवरलुक्ड इट। और उन्होंने मतलब कभी देखना ही पसंद, मैंने कहा आपको पता है कि आपकी भी आंखों में मतलब ग्लोकोमा उतर रहा है? तो ही सेड कि नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अवेयरनेस एंड Exactly. हाँ जी, काउंसलिंग और फिर एग्जामिनेशन, पेशेंट अवेयर होगा तो वो उसकी चेकअप कराएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जी उस वक्त उनको उनका आईओपी फिर कराया। उनका आईओपी वाज इन 20s, लेट 20s एंड हिज डिस्क वाज अलार्मिंग। तो 0.7 0.78 का कप था। तो मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जी बीइंग इन दैट डिपार्टमेंट आल्सो, लेकिन वो उन्होंने केयर ही नहीं की क्योंकि अवेयरनेस लैक ऑफ। अब तो खैर इट्स द थिंग्स हैव चेंज्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट इट जब मैंने इनिशियली शुरू किया था, ये तब पुरानी बात बता रही, बट फॉर जूनियर्स ऑब्वियसली देयर इज अ स्टार्ट ऑलवेज। तो उनके लिए तो ये बात चाहिए कि आप डिटेल्ड हिस्ट्री लो और उसके बेसिस पे। तो इसलिए ये शेयर, ये मैं केस कभी नहीं भूलती कि जी सिर्फ फॉरेन बॉडी सेंसेशन के लिए मैंने चेक कर रही थी एंड देन आई गॉट टू नो again। and then secondly there are some patients, एक दो patients मेरे पास इस तरह के आए हुए हैं जो कि young patients हैं, they are very aware of their disease कि जी हमें हो सकता है कि नहीं क्योंकि we have a family history। वो दोनों patients कोई 22-23 के हैं और they are मतलब particular कि जी हमें ना हो जाए, हमें बल्कि over cautious भी हो रहे हैं वो। Yes. but since OCT में abnormal है, बट इट इज नॉट दैट कि जी मैं उनको स्टार्ट करा दूं क्योंकि उनके मेडिकेशन बेसिकली आप अभी स्टार्ट नहीं करा रही? कराई मैंने उनको इसलिए कि बैलेंस रखना है कि अभी से अगर उनको कर दूंगी तो लेबल मैंने उनको, लेकिन बट स्ट्रिक्टली ये बताया काउंसलिंग के काउंसिल करके कि आपने इसको मॉनिटर करते रहना है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो अप लेंगी उनका बार बार ताकि पता चल जाए कि प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से। क्योंकि उनका ओसीटी कराया तो ओसीटी इज डी रेंज, बट यही मैंने आपको पहले बात बताया कि एक ओसीटी पे अगर फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आईयूपीज नहीं है तो हम उसको फॉलो अप पे रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि देयर एंड देन हम यंग पेशेंट को स्टार्ट, बट अगेन वही बात, उसको फॉलो अप्स पे रख के उसको समझा के कि अगर आप, और उसको ये भी दे दिया ऑप्शन कि अगर आप फॉलो अप्स नहीं रख सकते देन वी हैव स्कूल ऑफ थॉट कि जी हम आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। बट इस तरह के हैं कि लेकिन वो कॉन्शियस पेशेंट से, तो मैंने उनको जब ये समझाया तो दोनों पेशेंट इस तरह। That's brilliant. Okay, तो आपके केसेस में एक तो फैमिली हिस्ट्री और अवेयरनेस का एक केस आपने डिस्कस किया जिसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने कि पेशेंट अवेयर ही नहीं है, इवन दो दे नो कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिवियरिटी ऑफ ग्लॉकोमा। सो दैट इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काफी ज्यादा नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। और सेकेंडली यू हैव टोल्ड कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ओवर अवेयर होते हैं, सो दिस इज वेरी sorry to cut you. Even this was about primary cases, primary open angle related cases, but I would like to mention secondary cases जो मेरे पास न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा के आते हैं रेफरल्स। वो जो आई न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा में इन्वॉल्व है, दैट इज उसको तो मैंने मैनेज करना है, प्रेशर कम करना है बाय मेडिकेशन, बाय लेजर, व्हाटएवर। बट दूसरी आंख को एग्जामिन जरूर करें क्योंकि द कॉज इज इन दैट। सो वो चीजें इग्नोर होती हैं, वो भी जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ऑब्वियसली आई एम नॉट, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर द जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, इसलिए कहना चाहता हूं
जी दूसरी आई को जरूर एग्जामिन करें, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द कॉज एंड सेव द अदर आई, बिकॉज नियोवैस्कुलर ग्लाइकोमा में यूजुअली द आई इज लॉस्ट, तो सेकंड आई को हमें सेव करना बहुत जरूरी है। Okay, brilliant. Thank you so much for such beautifully explaining actually. So अब हम ट्रीटमेंट की हमने बीच में डिस्कशन भी किया था, तो मुझे ये आपसे पता करना है कि बेसिकली आपका प्रेफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन के टर्म्स में जो है वो क्या आपका होता है ग्लाइकोमा में? Yes, definitely according to the guidelines, international guidelines, first line of treatment है ही medication. So anti glaucoma drops में और basically अगर patient का depending on the IUP अगर lower 20s में है तो I prefer the prostaglandins, क्योंकि एक prostaglandin analogs because उसका ये कि सिंगल डोज है, पेशेंट की आपने ये भी देखना होता है कि पेशेंट कंफर्ट भी देखना ऑब्वियसली कि अब आप 2-3 दफा ड्रॉप्स डालने आसान है या एक दफा डालना, हमें भी कोई चीज ज्यादा दफा दवाई खाने को मिले तो इट्स नॉट इजी, सो वी हैव टू कंसीडर पेशेंट्स एज ह्यूमन बीइंग्स और खुद जो अपने लिए प्रेफर करें वो उसी तरह। तो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इफ कोई और इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं है तो obviously first line of treatment मेरी according to international guidelines also prostaglandin analog होती है, then depending on the फिर हम combinations add करते हैं, और why combinations again for the patients benefit के जी उनको number of drops कम होंगे और ocular surface जो उनकी है that will be also safe. So then dorzolamide bitalol अगर वो एस्थमेटिक नहीं है तो बिटॉक ये कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, वरना और अदर कॉम्बिनेशंस एंड वन प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स 3 ड्रॉप्स इन 2 बॉटल्स, तो वो इजी भी होता है पेशेंट्स के लिए डालना एंड इट्स आल्सो कंफर्टिंग फॉर द ऑक्यूलर सर्फेस। तो कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स फिर सेकंड मेरा बेसिकली टारगेट आईओपी जो है वो उस पे फोकस होता है कि वो अचीव हो जाए और पेशेंट की कंप्लायंस बेसिकली चेक की जाती है इनिशियली जो आईओपी क्या है और फिर टारगेट हमने जो अचीव करना है वो कितने ड्रॉप से होगा, 1 से सफिशिएंट है या 2 मोर देन या थेरेपी बेसिकली उस हिसाब से चलती है। ओके, दैट वाज ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी जो है वो काफी शॉर्ट टाइम में यू हैव एक्सप्लेन एंड कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट द वे यू डिड इट। सो मैं आपका ज्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई एम श्योर यू आर बिजी पर्सन। उसके तो मैं लास्टली आपसे एक एंडिंग में ये पूछना चाहूंगी, कोई एडवाइस आपको जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को देनी हो फॉर ग्लाइकोमा मैनेजमेंट या ओवरऑल आपको बताना हो उनको कुछ? Yes, definitely I would like to treat your patients as human beings, be kind to them because patient से पहले वो एक इंसान, और जिस तरह हम चाहते हैं कि हमें डील किया जाए या हमारे रिलेटिव्स को डील किया जाए तो बी काइंड टू देम। सारे पेशेंट्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ग्लाइकोमा स्पेशली ग्लाइकोमा पेशेंट्स दे आर ऑलरेडी इन मिजरी। तो कुछ पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जिनके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब आईओपी उनका मेंटेन भी हो बट देयर विजुअल प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, तो उनके साथ कम से कम हम शेयर तो कर सकते हैं ना मिजरी। तो ये कि उनको झटके नहीं, ऑब्वियसली देयर इज ओवरलोड इन पब्लिक सेक्टर, तो उनके साथ आप talk to them kindly, treat them as humans and मतलब obviously सभी करते हैं और हम we are the chosen ones। ये नहीं है कि हमने कोई, अल्लाह ताला ने हमें पेशेंट्स डॉक्टर्स बनाया है तो पेशेंट्स की वजह से ही बनाया है एंड उसको हमें लेके चलना चाहिए कि पेशेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, उनका ख्याल करें एंड दिस इज फॉर द एथिक्स ऑफ द पेशेंट्स। देन गोनियोस्कोपी जैसे मैंने पहले कहा है इज अ फॉरगॉटन आर्ट, प्लीज जूनियर उसको इन्वॉल्व करें अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसी पे रिलाई कर डिपेंड करें बट नॉट कि जी सिर्फ उसी पे करें। अपने इंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन स्पेशली गोनियोस्कोपी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इन्वेस्टिगेशंस को प्रोग्रेशन के लिए इम्प्रूव कीजिए। ओके, ब्रिलियंट। सो आपने बेसिकली एंड अप जो है वो रैप अप बहुत अच्छे खूबसूरती से करा है कि आपने ये कहा है कि पेशेंट्स के लिए जो है वो हमारा, क्योंकि आपका आई मीन योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स का आर्ट ही है कि पेशेंट्स के उनको केयर करनी होती है, तो वी हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पेशेंट्स और उनके लिए सोचना चाहिए, उनके शूज में रह करके कितना क्रॉनिक डिजीज है एंड मतलब इनका लाइफ लॉन्ग इनका साथ रहेगा ये, तो उनकी डिफिकल्टीज जो है वो इतने शॉर्ट टाइम में कि वो आपके पास आ रहे हैं उनको और मतलब आप उनके लिए मुश्किल और ना हो ताकि उनके लिए आसानी ही हो। और सेकेंडली आपने जो है वो गोनियोस्कोपी के बारे में बोला एंड यू एक्चुअली मेंशन्ड इट मल्टीपल टाइम्स कि इट इज अ फॉरगॉटन आर्ट, सो इस पे फोकस होना चाहिए और एंटीरियर सेगमेंट की हमें एग्जामिनेशन जो है वो और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी चाहिए। सो आई थिंक मुझे अगर समझ आ रहा है तो आई एम श्योर जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो उनको ज्यादा अच्छी से ये बात जो है वो समझ आई होगी। So thank you so much, Dr. Saman. It has been wonderful doing this session with
with you. आप आई और आपने इतना अपना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. I'm sure इससे ज़्यादा ही learning हुई है सबकी. So lastly, I just would like to say thank you for us, and inshallah we are going to continue this collaboration in future as well. So Allah Hafiz. Allah Hafiz, thank you. It was very nice talking to you. And glaucoma is my passion. Is I can talk over it for hours. लेकिन ये कि हमारा time constraint है. But please, thank you so much for calling me on. Wonderful. Thank you. Allah Hafiz.